So, hi everyone, I'm Sonia Nan, and today we are going to discuss amino acid topic, right? And this is the topic, right? This is the topic you mainly study in your bachelor's and in master's courses in life sciences, right? No matter which course you study, microbiology, biochemistry, biotechnology, right? So this topic is important for each and every course of life sciences and for various national level examinations, right? Like CSIR NET, UGC, DBT, and DEAT, right? And we will follow very authentic book for this topic, right? हम follow करेंगे Leninger, right? So most of the colleges में or even for your NCERT जो book mention, even for your CSIR NET जो book mention करी गई है, that book is a Leninger for biochemistry. तो हम biochemistry follow करेंगे amino acids के लिए. And one more thing, right? Many a time हमें क्या लगता है कि this amino acids को हम पढ़ तो लेते हैं, हमें समझ भी आ जाता है, लेकिन उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है. सो फॉर द सेम कि हम इजिली याद कर सकें अमीनो एसिड्स को, आई टेल यू सम न्यूमोनिक्स और यू कैन से ट्रिक्स, राइट? सो हम ट्रिक्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे अमीनो एसिड्स को while following a authentic book, right? हम authentic book follow करेंगे इसके लिए, that is your Leninger, right? So this is the introduction. Hope you are doing well. Welcome to the class, right? Okay, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स के वेरियस classes, right? Their properties, their characteristics. Okay, right. Now let's start with the lecture. Right, so first here we have amino acids history, right? Amino acids history. Okay, see, the first to be discovered was asparagine, right? Asparagine जो amino acid था वो सबसे पहले discover हुआ था. We all know कि 20 amino acids we have, right? In total we have 20 amino acids, although एक new amino acid add हुआ है अभी, that is 21st amino acid. हम study करेंगे upcoming slides में उसके बारे में भी डिटेल में, right? उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि amino acid जो 21st जो amino acid है उसकी कुछ properties के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया previous year questions papers में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे हम कि अमीनो एसिड्स की हिस्ट्री क्या है, राइट? सो फर्स्ट टाइम इट वाज अमीनो एसिड्स, जो भी अमीनो एसिड डिस्कवर हुआ था दैट वाज एस्पार्जिन एंड द ईयर इज 1806, राइट? सो वी हैव 20 अमीनो एसिड. तो फर्स्ट तो एस्पार्जिन था, लेकिन जो लास्ट था, राइट, जो 20th अमीनो एसिड था उसका क्या नाम है, राइट? सो द 20th अमीनो एसिड टू बी फाउंड वाज थ्रियोनिन, राइट? So asparagine and threonine you have to remember was not identified until 1938. जो threonine amino acid था, देखो कितना टाइम गैप है, राइट? जो asparagine था वो 1806 में डिस्कवर हो गया था, बट threonine जो था that was discovered in year 1938, right? So a huge gap between these two discoveries. Okay, सो इतना याद हो गया, एस्पार्जिन एंड थ्रियोनिन आपको याद रखना है बस. दिस इज गिवन इन योर बुक लेनेंजर, राइट? सो इतना ही उन्होंने दिया है अमीनो एसिड्स के बारे में, डिस्कवरी के बारे में. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस मच ओनली. और उन्होंने मेंशन किया है कि टिल नाउ वी हैव मेनली 20 अमीनो एसिड्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस 21st अमीनो एसिड दैट इज सेलिनोसिस्टीन, इसकी भी डिस्कवरी हुई है. और 22nd अमीनो एसिड जो कि अभी किसी बुक में ऐड नहीं किया गया कि ये अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो राइट. सो दिस इज नॉट सच, बट 22nd अमीनो एसिड मिलता है बैक्टीरिया के केस में, दैट इज पायरोलाइसिन, बट हमें मेनली सेलिनोसिस्टीन तक ही पढ़ना होता है, राइट? So this is about introduction and history of amino acids. Okay, right. So next we have this paragraph, right? So आपकी बुक में क्या given है कि in addition to these 20 amino acids, Leninger ने बोला है कि 20 amino acids के अलावा there are many less common ones. देखो 20 amino acids तो ऐसे amino acids हैं जो most of जो हमारी body में जो protein मिलेगा उस प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स मिले, ये 20 अमीनो एसिड्स क्या करेंगे, मिलेंगे ही इन मेजोरिटी, राइट? So let's say we have a protein here, right? So 20 amino acids तो most common amino acids है, means कि किसी प्रोटीन में ये amino acids तो मिलेंगे ही, right? And apart from these 20 most common amino acids, कुछ ऐसे amino acids भी हैं जो less common है, right? जो less common मिलते हैं.
तो सम आर रेजिड्यू मॉडिफाइड आफ्टर प्रोटीन हैज बीन सिंथेसाइज्ड। अब देखो जो 20 अमीनो एसिड्स है ना, देखो ऐसे तो सेल में बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, मोर देन 300, राइट, अप्रोक्स दिस नंबर, इतने सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट, बट सारे अमीनो एसिड्स प्रोटीन में इन्वॉल्व नहीं होते जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट, जिससे प्रोटीन बनता है। सिर्फ उन अमीनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स मान के चलते हैं, और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में हम मेनली 20 अमीनो एसिड्स पढ़ते थे, बट 21st अमीनो एसिड वी हैव टू स्टडी, दैट इज सेलिनोसिस्टीन न्यूली एडेड अमीनो एसिड, राइट। तो जो 20 अमीनो एसिड्स है दे आर द मोस्ट कॉमन, की वो मैक्सिमम ऑफ द प्रोटीन के अंदर वही मिलेंगे। अब जो लिस्ट कॉमन वाले हैं वो देखो प्रोटीन में तो मिलेंगे नहीं डायरेक्टली, राइट, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वो डायरेक्टली प्रोटीन में नहीं बनते, राइट, वो डायरेक्टली प्रोटीन में नहीं मिलते। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, राइट, आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस की सारे अमीनो एसिड्स प्रोटीन की चेन में ऐड हो गए हैं, उसके बाद प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है, राइट। मैनी ऑफ अस नो कि मॉडिफाई कैसे करते हैं, फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, डीफॉस्फोराइलेशन कर देंगे, हाइड्रोक्सिलेशन कर देंगे, राइट। सो ये कुछ प्रोसेस होती है जो कि प्रोटीन के बनने के बाद प्रोटीन पे कुछ हम एक्स्ट्रा कुछ ऑर्गेनिक ग्रुप्स और कंपाउंड्स ऐड कर देते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन, राइट। ओके, एंड द appropriate word for this is post translational modification, right। तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो इनिशियली तो प्रोटीन की चेन में नहीं होते, बट आफ्टर आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस उनको ऐड कर दिया जाता है प्रोटीन की चेन में, राइट। सो आपको ये याद रखना है। सो modified after protein has been synthesized. Others are amino acid present in living organisms but not as constituent of proteins, right। देखो कुछ तो लिस्ट कॉमन वाले हैं जो बाद में कुछ ग्रुप ऐड हो जाते हैं अमीनो एसिड्स के ऊपर, तो वो वाले अमीनो एसिड बन जाते हैं जो लिस्ट कॉमन वन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आगे हम स्टडी करेंगे, राइट, 5 हाइड्रोक्सिल मिथायोनिन लाइक दिस, राइट। तो इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, बट कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं जो ना तो मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ना वो नेचुरली प्रोटीन्स में मिलते हैं, राइट, उनका कुछ अदर फंक्शन होता है, कुछ अदर केमिकल रिएक्शंस में उनका फंक्शन होता है, उनका रोल होता है। So we do not study those amino acids, right? We have to study only standard amino acids, right? Only standard amino acids. So we'll study standard amino acids only, और standard amino acids में भी हम क्या क्या स्टडी करेंगे, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, देयर प्रॉपर्टीज, राइट। सो ये सब चीज हम स्टडी करेंगे अबाउट अमीनो एसिड्स, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस, राइट। अब नेमिंग देखें हम, राइट, ईच अमीनो एसिड को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, राइट, जितने भी 20 अमीनो एसिड्स है सबको नेम दिया गया है, दिस थिंग वी नो, राइट, दिस इज बेसिक। अब देखो नेमिंग कैसे करी गई है इनकी, नंबर वन जो क्राइटेरिया फॉलो किया गया है, ट्रिवियल, राइट, ट्रिवियल और कॉमन नेम्स दिए गए हैं इनको, राइट। और जो इनके ट्रिवियल और कॉमन नेम्स है, राइट, एज सच इनके लिए कुछ फॉलो नहीं करा गया है कि कोई नोमेनक्लेचर है बिल्कुल जैसे एंजाइम्स के लिए फॉलो किया जाता है, राइट, ऐसा कोई नोमेनक्लेचर तो फॉलो नहीं हुआ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ट्रिवियल और कॉमन नेम्स ही से ही हम अमीनो एसिड्स की नेमिंग करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिवियल नेमिंग होती है या फिर कोई कुछ इंटरनेशनल नेमिंग होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू आंसर कि ट्रिवियल और कॉमन नेम होते हैं अमीनो एसिड्स के, राइट। और ये जो ट्रिवियल और कॉमन नेम है ये कैसे नेम दिए जाते हैं, किस बेसिस पे दिए जाते हैं। नंबर वन तो वो जो अमीनो एसिड है वो किस सोर्स से मिलता है मेनली, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम अमीनो एसिड को उसका नेम देते हैं, राइट, आफ्टर डेट पर्टिकुलर सोर्स जिससे हमें अमीनो एसिड मिलता है, राइट। सो दिस इज वन क्राइटेरिया, एंड द अदर क्राइटेरिया टू नेम अमीनो एसिड इज, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। नंबर वन तो कौन से सोर्स से आइसोलेट किया है अमीनो एसिड को, उस बेसिस पे हम उसकी नेमिंग करेंगे। नंबर टू कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ स्पेसिफिक कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज अगर किसी अमीनो एसिड की हैं, देन ऑन दैट बेसिस आल्सो वी कैन नेम दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड, राइट, सिंपल। ओके, राइट। अब देखो कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, लेनिंजर में गिवन है ये सारे एग्जांपल्स, सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट। देखो अब एस्पार्जिन, राइट, एस्पार्जिन पहले भी पढ़ा था, एस्पार्जिन इज द फर्स्टली डिस्कवर्ड अमीनो एसिड, राइट, इन 1806, राइट। अब इसको नेम क्यों दिया गया, एस्पार्जिन नेम क्यों दिया गया इस अमीनो एसिड को, तो इसका एक रीजन है कि ये
फंगस जो होती है उससे फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेट किया गया था, राइट। देन ग्लूटामेट को किससे, वही जो वेट ग्लूटेन होता है ना उससे किया गया था। देन टायरोसिन मेनली चीज में मिलता है, राइट। तो आपसे पूछा जाए चीज में मेनली कौन सा अमीनो एसिड मिलता है, तो यू हैव टू आंसर टायरोसिन, राइट। एंड व्हीट ग्लूटेन में ग्लूटामेट, एंड एस्पैरागस में एस्पार्जिन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो वर्ड है उसका मीनिंग पहले जान लो। उसका मीनिंग होता है कि स्वीट इन टेस्ट, राइट। तो जो ग्लाइसिन का जो ग्रीक मीनिंग है दैट इज स्वीट, राइट। और जो ग्लाइसिन है दैट इज स्वीट इन टेस्ट, सो इसको वर्ड को दे दिया हमने ग्लाइसिन नेम, राइट। सो इस अमीनो एसिड को हमने ग्लाइसिन नेम दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ इस प्रॉपर्टी, लाइक, राइट, द स्वीट प्रॉपर्टी। So this is about trivial or common names of amino acids. Okay, so this much is clear, right? इतना आ गया समझ? Now next we have to study structure of amino acid, right? जितने भी अमीनो एसिड है उनका सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, राइट। एक लिमिट तक उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, राइट। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है अमीनो एसिड्स का वो सेम रहता है इन ईच एंड एवरी अमीनो एसिड। हम 20 अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो उनकी बैकबोन है, राइट। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम मिलेगा सारे अमीनो एसिड्स में। जो वेरी करेगा, राइट, उसमें सिर्फ एक ग्रुप वेरी करेगा, वो हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है अमीनो एसिड्स का, राइट। अब देखो, राइट, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। क्या क्या मिलेगा इसमें? नंबर 1, दिस इज कार्बन, राइट। सेंटर में क्या मिलेगी? एक कार्बन मिलेगी। ओके, और इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम? अल्फा कार्बन, राइट। सो दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। ओके, अब अल्फा कार्बन से अटैच होते हैं दो ग्रुप्स, राइट। दो ग्रुप्स अटैच होते हैं। नंबर 1, दिस अमीनो ग्रुप, राइट। अमीनो एसिड बोल रहे हैं, राइट। सी, अमीनो एसिड, वी आर सेइंग कि दिस स्ट्रक्चर इज अमीनो एसिड, राइट। अब अमीनो एसिड का मीनिंग ही क्या है? अमीनो मीन्स दिस NH3 ग्रुप, राइट। अमीनो मीन्स दिस NH3 प्लस ग्रुप, एंड एसिड, राइट। एसिड मीन्स कि कोई एसिड भी स्ट्रक्चर में होगा, राइट। अमीनो बोला तो अमीनो स्ट्रक्चर में है, अब एसिड भी तो बोल रहे हैं हम, तो एसिड भी होगा। that acid here we have is carboxylic acid, right? Carboxylic acid, or you can say carboxylate ion. तो यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा अल्फा कार्बन से बॉन्डेड, एंड एक अमीनो ग्रुप मिलेगा, राइट। दो तो हो गए। अब जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है, राइट। कार्बन कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स, राइट। कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स, राइट। तो अब दो बॉन्ड्स तो हमने बना दिए, वन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड विद अमीनो ग्रुप, राइट। सो द थर्ड बॉन्ड इज विद हाइड्रोजन, राइट। अब जो ये तीन जो बॉन्ड है कार्बन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो एंड हाइड्रोजन, ये तो सारे अमीनो एसिड्स में ऐसे ही मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर सेम, राइट। दिस इज सेम फॉर ईच एंड एवरी अमीनो एसिड वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। ये कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन आर बॉन्डेड, राइट। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। नाउ जो ये आर ग्रुप है, राइट, अब यहाँ पे जो आर वाला ग्रुप है, राइट, इसको बोलते हैं साइड चेन, राइट। इस आर ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं साइड चेन। अब साइड चेन की क्या है कि ये साइड चेन जो है, ये जितने भी हम स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे सबकी साइड चेन इज डिफरेंट, राइट। साइड चेन वेरी करेगी विद एमिनो एसिड, राइट। किसी भी दो एमिनो एसिड्स की साइड चेन सेम नहीं मिलेगी, राइट। तो जो आर ग्रुप है उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। और ये जो आर ग्रुप है इसकी वजह से ही जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी करती है, राइट। तो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको आपको याद कैसे रखना है, राइट। सबसे पहले तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद करना है अमीनो एसिड का जो ये है, राइट। तो इसको आपको याद करना है पहले तो, राइट, इस स्ट्रक्चर को याद करना है। देन आप आगे पढ़ोगे सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर वन बाय वन, तो उसके बाद वो सारे स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, राइट।
So this structure is common to all but one of the alpha amino acid, right? मेन ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे अमीनो एसिड्स के लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, राइट? और इस एक्सेप्शन पे बहुत टाइम मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट? तो एक्सेप्शन क्या आ जाता है? एक्सेप्शन किस में आता है? प्रोलीन में आता है, राइट? एक्सेप्शन ये कहाँ पे आ जाता है? प्रोलीन में आ जाता है। जो प्रोलीन है वो एक साइक्लिक अमीनो एसिड है, राइट? सो दिस इज साइक्लिक अमीनो एसिड। एक ये ओनली अकेला अमीनो एसिड्स है आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, और यू कैन से 21 अमीनो एसिड्स। दिस इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज साइक्लिक अमीनो एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए साइक्लिक अमीनो एसिड्स के बारे में, साइक्लिक अमीनो एसिड के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि साइक्लिक अमीनो एसिड कौन सा है, तो यू हैव टू आंसर दैट प्रोलीन इज साइक्लिक अमीनो एसिड, राइट? प्रोलीन जो है वो साइक्लिक अमीनो एसिड है। और जो देखो अभी साइक्लिक अमीनो एसिड है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है इससे, बेसिक जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का उससे अलग है प्रोलीन का स्ट्रक्चर, राइट? इन अपकमिंग स्लाइड हम स्टडी करेंगे अबाउट प्रोलीन का स्ट्रक्चर इन डिटेल, राइट? अभी आप याद रख लो कि एक्सेप्शन है प्रोलीन, और व्हाई दिस इज एक्सेप्शनल केस। रीजन इज कि इसकी जो आर ग्रुप है, जो इसका आर ग्रुप है, दैट आर ग्रुप इज साइक्लिक, राइट? वो आर ग्रुप क्या है? साइक्लिक। So this is about structure of amino acids. Okay. Next we have this important property of amino acid, right? For all the common amino acid, जितने भी amino acids होते हैं हमने सबका amino acid का basic structure हमने देख लिया है। basic structure क्या है? This is alpha carbon, right? यहाँ पे carboxylic acid लगा हुआ है, and this on this side we have here this group, right? Ammonia group, and here we have R group, right? And here we have this hydrogen. सारे अमीनो एसिड्स का यही डायग्राम है, राइट? अब अगर हम देखें कि जो अमीनो एसिड्स है इनकी एक बहुत अच्छी यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज कायरलिटी, राइट? कायरलिटी ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, राइट? कायरलिटी कब बोलेंगे? जब इस कार्बन से, राइट, इस अल्फा कार्बन से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो, राइट? इस अल्फा कार्बन से डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बॉन्डेड हो। अगर आप बेसिक अभी स्ट्रक्चर देखो तो इसमें एक तो कार्बोक्सिलेट आयन बॉन्डेड है, दूसरा अमोनिया ग्रुप बॉन्डेड, अमीनो ग्रुप बॉन्डेड है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड है, राइट? ये तीनों तो एक दूसरे से अलग हैं, ये तो सेम नहीं है। अब जो फोर्थ है, फोर्थ इज आर ग्रुप, राइट? सो दिस शुड बी डिफरेंट टू मेक अ मॉलिक्यूल कायरल, राइट? ये अलग होना चाहिए अगर हमें किसी मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बनाना है, राइट? तो आर ग्रुप को हमें वेरी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अब आर ग्रुप है ना, अगर इसको कायरल बनाना है तो जो ये आर ग्रुप है इस ये कार्बोक्सिलेट आयन नहीं हो सकता, एमिनो नहीं हो सकता और हाइड्रोजन नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये कार्बल ये सॉरी ये कायरल बन जाएगा, राइट? सो द कायरल मॉलिक्यूल के लिए वी नीड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज ग्रुप्स, राइट? केमिकल ग्रुप्स। अब यहाँ पे, राइट, इन केस ऑफ ग्लाइसिन, राइट, इन केस ऑफ ग्लाइसिन यहाँ पे क्या होता है? ग्लाइसिन जो होता है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, राइट? ग्लाइसिन जो होता है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, आपको याद रखना है ये। अब ग्लाइसिन के केस में यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन होता है, राइट? ग्लाइसिन के केस में हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देती हूँ, राइट, लेट्स से हियर वी अटैच हाइड्रोजन, राइट? यहाँ पे हाइड्रोजन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो, राइट? आपको कायरलिटी समझ में आ गई कि 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप्स जो होने बॉन्डेड होने चाहिए कार्बन से, अल्फा कार्बन से। तो ये हमारी क्या है? अल्फा कार्बन है, राइट? अब अल्फा कार्बन से क्या अटैच है? यहाँ पे अमीनो ग्रुप अटैच है, राइट? यहाँ पे ये COO नेगेटिव अटैच है, राइट? कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब जो ये वाला ग्रुप है आर ग्रुप, दिस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दीज 3 ग्रुप्स, राइट? जब भी हम बोलेंगे कि दिस इज कायरल मॉलिक्यूल, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? इन केस ऑफ ग्लाइसिन, राइट, ग्लाइसिन के केस में जो ये ग्रुप है ये सेम नहीं रहता, राइट? सेम ग्रुप ना होके यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, राइट? एंड ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, राइट? ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, राइट? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो 2 सेम ग्रुप्स हो गए यहाँ पे, राइट? अब ये कायरल तो रहा नहीं, क्योंकि कायरलिटी के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था, ना यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन होना चाहिए, ना यहाँ पे अमीनो ग्रुप होना चाहिए, जब भी ये मॉलिक्यूल कायरल होगा, राइट? सारे 4 जो ये पोजीशन है, 4 पोजीशंस पे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होने चाहिए, राइट?
तो यहाँ पे अब दिस इज नॉट कायरल, तो सारे अमीनो एसिड्स कायरल होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, राइट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, वो आपको ऑप्शंस देंगे कि आउट ऑफ दीज विच वन इज नॉट कायरल, तो यू हैव टू आंसर दैट ओके ग्लाइसिन इज नॉट कायरल, ग्लाइसिन इज ए कायरल, राइट। तो ये वाला अमीनो एसिड ए कायरल होता है, रेस्ट सारे अमीनो एसिड्स कायरल होते हैं, राइट। अब जो जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। क्या प्रॉपर्टी होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आइसोमर्स बनाते हैं, राइट। आइसोमर्स भी कौन से, स्टीरियो आइसोमर्स बनाते हैं, राइट। स्टीरियो आइसोमर्स बनाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, राइट, स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। अब स्टीरियो आइसोमर्स अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, राइट। अब स्टीरियो आइसोमर्स बन गए दो एक ही स्ट्रक्चर के दो स्टीरियो आइसोमर्स बन गए, लेट्स से, राइट। और वो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, राइट, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग क्या है, अगर हम जैसे ये एक एक स्टीरियो आइसोमर है, इसको हम मिरर में देखेंगे तो जो इसका जो स्ट्रक्चर है, राइट, और जो दूसरा स्टीरियो आइसोमर है वो एक दूसरे पे इम्पोज नहीं करेंगे। अगर हम उसको उनको एक दूसरे पे इम्पोज करेंगे तो वो इम्पोज नहीं होंगे, राइट। तो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, राइट। अब देखो स्टीरियो आइसोमर जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उनको बोलते हैं इनैंशियोमर्स, राइट, इनैंशियोमर्स। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें कायरल कार्बन मिलता है दोज आर इनैंशियोमर्स, राइट, वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट वन अमीनो एसिड, एंड विच अमीनो एसिड, एक्सेप्ट ग्लाइसिन अमीनो एसिड ऑल अदर अमीनो एसिड्स आर कायरल, वन थिंग। सेकंड, all are stereoisomers, okay, right, each amino acid has its stereoisomer, right। विल स्टडी कि कौन से कैसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, राइट। अब जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इनके वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, राइट। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो उनको बोलेंगे एनेंशियोमर्स, राइट। सो दिस इज अबाउट chirality of amino acids, right। so this is one property and this is important, right, इसमें से क्वेश्चन बनता है, ओके। तो ये स्लाइड अगेन यू वी हैव टू स्टडी कि फॉर ऑल द कॉमन अमीनो एसिड्स मीन्स दोज 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, राइट, एक्सेप्ट ग्लाइसिन द कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं सारे अमीनो एसिड्स में 4 डिफरेंट कार्बन ग्रुप्स होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट्स डायग्राम, कि इसमें जो आर ग्रुप होता है दैट इज हाइड्रोजन। अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन होगा तो जो ग्रुप्स हैं, जो ये 4 ग्रुप्स हैं, ये डिफरेंट ना होके दो जो ग्रुप्स हैं वो सेम हो जाएंगे, राइट। हाइड्रोजन तो पहले से था क्योंकि उसमें, तो दिस इज व्हाई ग्लाइसिन इज नॉट कायरल, ओके, राइट। अब इनैंशियोमर्स की हमने बात करी थी ना, इनैंशियोमर्स की जो दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल स्टीरियो आइसोमर्स को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स, राइट। अब इनैंशियोमर्स अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो, राइट, एलेनिन, राइट, एलेनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। अब एलेनिन का अगर हम देखें इनैंशियोमर्स देखें, राइट, ईच अमीनो एसिड के 2 इनैंशियोमर्स हैं, राइट। और अगर इनको हम कंपेयर करें तो 2 टाइप के हैं, एक एल टाइप के हैं एक डी टाइप के हैं, राइट। एल टाइप के, डी टाइप के, राइट, लेवो एंड डेक्स्ट्रो, राइट, एल डी, राइट, 2 टाइप के। अब जो अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये एल टाइप का एनेंशियोमर है ये डी टाइप का एनेंशियोमर है, राइट, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एनेंशियोमर्स को हम कैसे बताएंगे कि ये एल वाला एमिनो एसिड है और ये डी वाला एमिनो एसिड है, राइट। तो देखो दिस इज वेरी सिंपल। अब जो एल वाले जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे, एल टाइप के जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे उनमें जो अमीनो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होगा, और जो डी वाले हैं उनमें अमीनो ग्रुप राइट साइड में होगा, राइट, लेवो लेफ्ट डेक्स्ट्रो और दैट इज राइट, राइट। तो जिसका अमीनो ग्रुप राइट साइड में है वो सारे डी हैं, जिसका ग्रुप एल साइड में है वो सारे क्या है, एल टाइप है, सिंपल है ना। तो एल एलेनिन में क्या होगा, एल एलेनिन में दिस अमीनो ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड एंड डी वाले में दिस इज ऑन राइट साइड। बस इतना ही आपको याद रखना है एल और डी में डिफरेंशिएट करने के लिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि जो हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो कौन से टाइप के हैं, राइट, वो कौन से टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे सेल्स में होते हैं।
डी टाइप के हैं या फिर एल टाइप के? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। कौन से टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते हैं हमारे सेल में? तो यूल आंसर एल टाइप के, राइट। एल टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। नॉर्मली हमारी जो बॉडी है उसमें एल टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया एल एलेनिन का स्ट्रक्चर एंड डी एलेनिन का स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, दो अलग-अलग डायग्राम दिए गए हैं, बी वाला और सी वाला, राइट। अब देखो इसमें क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? ये दोनों डायग्राम एलेनिन के ही हैं, राइट। डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस ये है कि इनका स्ट्रक्चर अलग-अलग टाइप से बनाया गया है, राइट। इनका स्ट्रक्चर अलग-अलग टाइप से बनाया गया है। जो नंबर 1 ये वाला जो डायग्राम है और ये वाला डायग्राम है, बोथ आर द डिफरेंट डायग्राम्स, राइट। अब देखो दोनों ही डायग्राम में दोनों, अब जो इसमें जो ये सॉलिड वाले जो बोन्स हैं, राइट, सॉलिड बोन्स हैं, ध्यान से देखो जो सॉलिड बोन्स हैं, ये जो बोन्स हैं, राइट, दीज आर द वर्टिकल, सॉरी, ओके, सो दीज आर द वर्टिकल बोन्स, राइट, दीज आर द वर्टिकल बोन्स जो बाहर की तरफ हैं, राइट। और जो डैश वाले, राइट, जो ये वाले डैश्ड जो है, डैश वाले जो बोन्स हैं वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल बोन्स हैं, राइट। डैश वाले जो बोन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल बोन्स हैं, और ये जो सेकंड टाइप के हैं, राइट, ये वाले जो सॉलिड हैं, दोज आर वर्टिकल। सिमिलरली यहाँ पे जो ये वाले बोन्स हैं, दीज आर द वर्टिकल बोन्स, मतलब कि रीडर्स की तरफ जो है, हमारी तरफ जो है, राइट। और जो बैकग्राउंड में जो है, जो हॉरिजॉन्टली जो है, राइट, दोज आर दीज, राइट, दीज बोन्स, ओके। तो जो टुवर्ड्स रीडर जो बॉन्ड है वो सॉलिड वाले हैं, और बैक बैक की तरफ जो बॉन्ड है वो कौन से हैं, जो प्लेन से बाहर की तरफ हैं, राइट। जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है वो कौन से बॉन्ड है, वो सॉलिड वाले बॉन्ड हैं, और जो प्लेन पे हैं, राइट, जो प्लेन पे हैं, दोज बॉन्ड्स आर, प्लेन वाले बॉन्ड्स आर डैश वाले बॉन्ड्स, राइट। सो डैश बॉन्ड्स एंड सॉलिड बॉन्ड्स, राइट। और इस डायग्राम में ये वाले बॉन्ड्स जो हैं ये आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन, राइट। और जो ये वाला बॉन्ड है, राइट, ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स आर इन प्लेन, राइट, ये प्लेन में है। तो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एनेंटियम। यहाँ आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एल में और डी कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट। एल में अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, वही जो डी वाला डी टाइप है, डी टाइप में क्या होगा, अमीनो ग्रुप इज सॉरी अमीनो ग्रुप इज ऑन राइट साइड, ओके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल एंड डी टाइप अमीनो एसिड्स। और हमारी बॉडी में जो कॉमनली हमारे सेल्स में जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं, दोज अमीनो एसिड्स आर एल टाइप अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब ये जितने हम, अब हमें 20 अमीनो एसिड्स याद रखने हैं, और 20 अमीनो एसिड्स की हमें क्या, 3 लेटर एब्रीविएशन भी याद रखनी है और 1 लेटर सिंबल भी याद रखना है, राइट। अब अमीनो एसिड्स को क्या किया गया कि देखो, अब हमें क्या करना होता है, अमीनो एसिड्स जब भी हम प्रोटीन की सिंथेसिस स्टडी करते हैं, ट्रांसलेशन स्टडी करते हैं, तो देखो डीएनए के लिए, प्रोटीन के लिए, सबके लिए हमने क्या बनाया है, डेटाबेस बना रखे हैं। अब देखो, अगर हम पूरे पूरे कंप्लीट नेम लिखेंगे अमीनो एसिड्स के उन डेटाबेस में, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब एक्सप्लेन करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा बहुत लार्ज साइज डेटा हो जाएगा, राइट। जिसको कंपाइल करना और स्टोर करना इज अ वेरी टफ टास्क, राइट। So to avoid this hectic procedure of writing complete name for each and every amino acid, scientists ने क्या way out निकाला कि इनको 3 letter abbreviation दिया, right। फिर 3 letter abbreviation को भी और छोटा करके इसको 1 letter symbol दे दिया for each and every amino acid, right। तो अब हमें क्या करना है, हर एक अमीनो एसिड का 3 लेटर एब्रीविएशन भी याद रखना है और 1 लेटर सिंबल भी याद रखना है, राइट। तो जो एलेनिन है, एलेनिन का क्या है, ए एल ए, फर्स्ट 3 लेटर्स, मेनली फर्स्ट 3 लेटर्स ही आपको दिखेंगे यहाँ पे 3 लेटर एब्रीविएशन में, राइट। और 1 लेटर में देखो, 1 लेटर में डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट। देखो अब एलेनिन जो है, एलेनिन में फर्स्ट क्या है, ए है, तो राइट, तो 1 लेटर इसको जो सिंबल दिया गया वो ए है, राइट। और ये जो एलेनिन है ये कॉमनली सेल्स में ज्यादा अमाउंट में मिलता है, तो इसको क्या दिया गया, ए लेटर दिया गया, राइट। आर्जिनिन, राइट। अब आर्जिनिन का जो 3 लेटर एब्रीविएशन है वो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, ए आर जी। लेकिन जो 1 लेटर सिंबल है, अब आप बोलोगे कि ए तो नहीं दे सकते हम इसको, क्योंकि ए तो हमने एलेनिन को दे दिया, तो इसको क्या देंगे, इसको देंगे सेकंड वाला लेटर, राइट, आर लेटर। क्योंकि आर्जिनिन और एलेनिन में कौन सा ज्यादा अमाउंट में, एलेनिन ज्यादा है,
राइट। ऑन दैट बेसिस हमने एलेनिन को ए दे दिया और आर्जिनिन को आर दे दिया, राइट। तो एस्पार्जिन, अब एस्पार्जिन में भी ए है, राइट। तो पहले तो इसके 3 लेटर्स दे देंगे इसको, सॉरी 3 लेटर्स नहीं, ए एस एन दे देंगे इसको, राइट, ए एस एन। एस्पार्जिन को ए एस एन, आपको ये याद रखना, ए एस एन 3 लेटर्स, राइट। इसके ये 3 लेटर्स ए एस एन है। और जो 1 लेटर जो इसको दिया गया, 1 लेटर इज एन, राइट, 1 लेटर इज एन। तो एस्पार्जिन को हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में एएसपी, राइट, फर्स्ट 3 लेटर्स अगेन। इस देखो, अब एस्पार्जिन में एएसपी क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने एस्पार्टिक एसिड को एएसपी दे दिया, राइट। और एस्पार्टिक एसिड का जो 1 लेटर एब्रीविएशन है दैट इज डी, राइट, डी, डी इज फॉर एस्पार्टिक एसिड, राइट। देन वी हैव सिस्टीन, सिस्टीन के लिए CYS एंड दिस एब्रीविएशन इज सी। ग्लूटामिक एसिड के लिए GLUE एंड ग्लूटामिन के लिए GLN एंड Q, राइट, Q। अब देखो, ग्लूटामिक एसिड को हमने E दिया है और ग्लूटामिन को हमने दिया है Q, राइट। किसी को भी इनमें से हमने G नहीं दिया, राइट। देन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड में से, ग्लूटामिन में से और ग्लाइसिन में से जो सबसे ज्यादा जो अमाउंट में हमारे सेल में एमिनो एसिड है वो ग्लूटामिन है। तो ग्लूटामिन को हमने फर्स्ट लेटर दे दिया G लेटर, राइट। तो ग्लूटामिन को G लेटर दिया है और 3 लेटर एब्रिविएशन तो इजी है, GLY, राइट। हिस्टिडिन, हिस्टिडिन को HIS दिया है एंड फर्स्ट लेटर H, राइट। तो हिस्टिडिन को H दिया है हमने। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में ILE, आइसोल्यूसिन, और इसका फर्स्ट लेटर I इज द सिंबल, ओके। देन वी हैव ल्यूसिन, ल्यूसिन में LEU, ल्यूसिन, फर्स्ट 3 लेटर्स एंड देन L इज द सिंबल, राइट, सिंपल। लाइसिन, अब लाइसिन में भी L है, ल्यूसिन में भी फर्स्ट लेटर L है। ल्यूसिन ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है सेल्स में, तो ल्यूसिन का फर्स्ट जो सिंबल है वो हमने फर्स्ट लेटर दे दिया, L दे दिया। बट इन केस ऑफ लाइसिन ये इतना कॉमन नहीं है व्हेन वी कंपेयर इट टू लाइसिन। तो इसको हम L ना देके L के पास वाला लेटर जो है वो है K, राइट। तो इसको हम लेटर दे देते हैं, सिंबल देते हैं K, राइट। तो मिथायोनिन, मिथायोनिन में क्या है, MET एंड इस सिंबल इज M, राइट। ये अकेला ही M से क्योंकि स्टार्ट होता है। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन में PHE, राइट। और फिनाइल एलेनिन को हम देते हैं F, राइट। अब ये इसकी प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे उन्होंने दिया था कि फिनाइल, अब फिनाइल जो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा F आता है ना प्रोनाउंसिएशन में, तो प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे इसको F सिंबल से हम डिनोट करते हैं फिनाइल को, F से, राइट। तो फिनाइल इज F। नेक्स्ट इज प्रोलीन, अब प्रोलीन ज्यादा अमाउंट में हमारे सेल्स में मिलता है कंपेयर टू फिनाइल एलेनिन, राइट। तो प्रोलीन को हमने P लेटर दे दिया, राइट। तो प्रोलीन को PRO और P सिंबल दे दिया इसको, राइट। सीरीन, सीरीन में SER और अकेला ही S से स्टार्ट होता है तो इसको S दे देंगे सिंबल को। एंड थ्रियोनिन, थ्रियोनिन इज THR और इसको सिंबल दिया है T। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन को TRP और इसको सिंबल दिया है W। एंड टायरोसिन, टायरोसिन को TYR और उसको सिंबल दिया है, देखो अब ट्रिप्टोफैन में TRY नहीं है, वहां पे TRP है, Y नहीं दिया है, राइट। और जो टायरोसिन है, टायरोसिन में TYR सिंबल है, ये कंफ्यूज मत करना इन दोनों में। और टायरोसिन में क्या है, Y इसका सिंबल है। देन वेलिन, वेलिन में दिस इज द ओनली वन अमीनो एसिड विच स्टार्ट्स बाय V लेटर, तो V इसको दे दिया हमने सिंबल, राइट। तो V, वेलिन, VAL एंड V इज द सिंबल, राइट। तो आपको यहाँ पे मेनली जो याद रखना है, ट्रिप्टोफैन का याद रखना है, ट्रिप्टोफैन का W होता है एंड देन टायरोसिन का, राइट, टायरोसिन का Y, राइट, टायरोसिन का Y, ओके। और 3 लेटर एब्रिविएशन भी आपको ट्रिप्टोफैन की याद रखनी है, दैट इज TRP, ट्रिप्टोफैन TRP, Y को हटा दिया इन्होंने, राइट। सो दिस इज, these are the 20 amino acids जिनके abbreviations and symbols आपको याद रखने हैं। if you want to solve those numerical और the concept based questions, तो आपको इनके 1 लेटर भी पता होने चाहिए, right? So next we have this different groups of amino acid, right? Different groups of amino acid. अब 2 टाइप्स के में 3 टाइप्स के amino acid हम देखते हैं, essential amino acids, non essential amino acids and semi essential amino acids, right? जो essential amino acids होते हैं, these are the amino acids, right? Essential amino acids ऐसे amino acids होते हैं
जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते, वी हैव टू टेक दोज अमीनो एसिड्स बाय आवर डाइट, राइट। हमारी डाइट के थ्रू हम इन अमीनो एसिड्स को कंज्यूम करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर वी डू नॉट हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज एसेंशियल अमीनो एसिड, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का अपटेक करना पड़ता है थ्रू डाइट, राइट। So all those amino acids which we take by our diet and not synthesized in our body are known as essential amino acids, राइट। अब ऐसे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि बहुत सारी क्लासेज आगे भी हमें पढ़नी है, बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे, तो आपके लिए इजी करने के लिए याद कैसे करें इसको, तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने लिखी हुई है। ट्रिक इज हिल माइट पुट टेस्टी वेजिटेबल्स, राइट। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो हिल पे होती हैं, राइट, और बहुत टेस्टी भी होती हैं, तो आप इसे याद रख सकते हो कि हिल माइट पुट टेस्टी वेजिटेबल्स, हिल माइट पुट टेस्टी वेजिटेबल्स। जो हिल का जो एच है दैट इज फॉर हिस्टिडीन, माइट का जो दिस आगे फिर हिल के बाद क्या है, हिल में आई है, आई इज फॉर आइसोल्यूसिन, राइट, एल इज फॉर ल्यूसिन एंड नेक्स्ट एल इज फॉर लाइसिन। तो इतना हिल से क्या हो गया, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन एंड लाइसिन, राइट। फिर माइट, माइट में एम है दैट इज मिथायोनिन, राइट। फिर आ गया पुट, पुट में क्या है, पुट में इज फिनाइल एलानिन, राइट। फिर आ गया टेस्टी, टेस्टी में टी, टी इज फॉर थ्रियोनिन, राइट। फिर टेस्टी में एक और टी है, राइट, दिस टी, दिस इज फॉर ट्रिप्टोफैन, राइट। एंड फिर आ गया वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का वी इज फॉर वेलिन, राइट। ऐसे आप याद रख सकते हो एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कैसे याद रखें, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए आप याद रख सकते हो कि एजीपीसी गैस, राइट, this is AGPC gas. AGPC gas means A means alanine, G means glycine, proline, P, right here P proline, C is cysteine and G is glutamate, A is asparagine, right, S is serine and P is phenylalanine, right, and this T tyrosine, right. At GPC gas, at GPC gas, right, टायरोसिन को भी आप इंक्लूड कर लो एट जीपीसी गैस, राइट। तो ए से एलानिन, टी से टायरोसिन और बाकी जीपीसी और गैस आपको पता ही है, राइट। तो ये थी ट्रिक फॉर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब क्या है, ये जो निमोनिक है, ये जो ट्रिक है, ये है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए, राइट। ये जो ट्रिक है ये है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए। और ये आपको कैसे याद रखना है, अ क्लेवर गाय टेल्स, राइट, अ क्लेवर गाय टेल्स, अ क्लेवर गाय टेल्स मीन्स ए मीन्स आर्जिनिन, राइट, सी क्लेवर, राइट, क्लेवर में सी है दैट इज सिस्टीन, देन गाय, गाय में जी ग्लूटामिन, राइट, एंड टी टेल्स टायरोसिन, राइट। आपको ऐसे याद रखने हैं ये वाले अमीनो एसिड्स, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन एंड टायरोसिन, ये दीज four amino acids, right, these four amino acids are the semi essential amino acids, okay, right। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई किया वेरियस क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, राइट। उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई किया है। नॉन पोलर, सबसे पहले देखो नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप, राइट, नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप में कौन से आएंगे, ग्लाइसिन आएगा, एलानिन आएगा, प्रोलीन आएगा, वेलिन आएगा, ल्यूसिन आएगा, आइसोल्यूसिन आएगा और मिथायोनिन आएगा, राइट। इसके लिए जो निमोनिक्स है और जो ट्रिक है वो क्या है, गैप वी लिया मैन, गैप वी लिया मैन, राइट। कई बार हम किसी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं तो गैप आ जाता है ना, ईयर कैसे याद रख लेना कि गैप वी लिया मैन, राइट, गैप वी लिया मैन। तो गैप वी लिया मैन मीन्स जी यहाँ पे ग्लाइसिन को डिनोट करता है, ए यहाँ पे एलेनिन को डिनोट करता है, पी यहाँ पे क्या है, दिस पी लेटर इज फॉर प्रोलीन एंड वी इज फॉर वेलिन, लिया, राइट, लिया, एल इज फॉर ल्यूसिन, आई इज फॉर आइसोल्यूसिन एंड वाई फॉर सी। इतना हो गया लिया। फिर मैन, राइट, मैन, मैन में एम इज फॉर मिथायोनिन और ये जो ए एन है, राइट, जो गैप वी लिया मैन, राइट। जो अब यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे एन बच गया और ए बच गया, राइट। अब ये ए का मीनिंग क्या है कि ये एलिफेटिक है और एन का मीनिंग क्या है कि ये नॉन पोलर है। तो गैप वी लिया मैन में एलिफेटिक नॉन पोलर ग्रुप्स हैं जो कि हैं जी ए ग्लाइसिन, एलानिन, पी प्रोलीन, वी वेलिन, दिस एल इज ल्यूसिन, राइट, देन लिया, आई आइसोल्यूसिन एंड मिथायोनिन मैन, ओके। फिर एरोमेटिक ग्रुप्स हैं, एरोमेटिक तो आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे, लेकिन अगर इन केस याद ना रहे फिर भी इसके लिए भी ये ट्रिक है,
फिर यस वारे, राइट, फिर से यस बोलते हैं हम तो क्या बोलेंगे, फिर यस वारे, राइट। तो फिर यस वारे मीन्स फिर, राइट। अब फिर में क्या आता है, राइट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी दिस एफ आता है ना, तो फिर एफ फिनाइल एलानिन, राइट। वाई, वाई किसके लिए होता है, ट्रिप्टोफैन के, सॉरी टायरोसिन के लिए होता है, राइट। वाई इज फॉर टायरोसिन, तो टायरोसिन इज वाई। देन वहा, राइट, वहा में डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू इज फॉर ट्रिप्टोफैन, तो ये हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, फिर यस वहा, राइट। तो ये हो गया, एफ से क्या हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फिनाइल एलानिन, वाई से टायरोसिन, डब्ल्यू से ट्रिप्टोफैन, राइट। और नेक्स्ट अरे, अरे का क्या मीनिंग है, अब अरे का मीनिंग है ए से है, ए और आर, राइट। दिस इज एरोमेटिक, राइट, कि ये अरे इज फॉर एरोमेटिक। अब एरोमेटिक हैं कौन से तीन, राइट, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, राइट। नेक्स्ट इज पोलर और अनचार्ज्ड आर ग्रुप। पोलर और अनचार्ज्ड आर ग्रुप में क्या आएगा, सीरीन, सीरीन एस, थ्रियोनिन टी, सिस्टीन सी, एस्पार्जिन एन, ग्लूटामिन क्यू, राइट। अब इसके लिए क्या है, संडे तक कार नी क्यों पूछो, राइट, संडे तक क्यों कार नहीं है ये पूछो, ऐसी ये ट्रिक है, ठीक है, ओके। तो संडे तक कार नी, राइट, संडे तक कार नी क्यों पूछो, राइट, क्यों कार नहीं है संडे तक ये पूछो, राइट। तो संडे तक कार नी क्यों पूछो, राइट। अब संडे से क्या हो जाएगा, एस से आ जाएगा सीरीन, और टी से आ जाएगा थ्रियोनिन, सी से आ जाएगा सिस्टीन, एन से आ जाएगा एस्पार्जिन, क्यू से आ जाएगा ग्लूटामिन, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, पूछो, राइट, यहाँ पे क्या है, पूछो। पूछो में क्या है, पी से है पोलर और यू से है अनचार्ज, राइट, पोलर अनचार्ज, ओके। तो पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, अनदर ग्रुप, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ पे क्या याद रखना है, क्या हर रास्ते पर चेंज, राइट, हर रास्ते पर कुछ चेंज है, तो क्या हर रास्ते पर चेंज, ये हम पूछ रहे हैं, राइट। तो क्या हर रास्ते पर चेंज, क्या हर रास्ते पर चेंज में जो के है, के लेटर इज फॉर लाइसिन, राइट, एच लेटर इज फॉर हिस्टिडिन, रास्ते का आर लेटर इज फॉर आर्जिनिन, राइट। एंड पर चेंज मीन्स पोलर हैं ये और चार्ज्ड हैं, राइट, सी, राइट, चार्ज्ड हैं, पोलर चार्ज, ओके। and this is positively charged, right, positively charged, p, right, पूछो, पर पॉजिटिव चार्ज चेंज, राइट। ऐसे ग्लू नहीं चिपकेगा, ये नेगेटिव वालों के लिए है जिनके आर ग्रुप नेगेटिव होते हैं, राइट, जिनके आर ग्रुप पॉजिटिव थे उनके लिए देख लिया, जिनके आर ग्रुप नेगेटिव होते हैं उनके लिए क्या होगा, एस्पार्टेट ग्लूटामेट, राइट। एस्पार्टेट में डी है, ग्लूटामेट में ई है, राइट। तो ऐसे ऐसे ग्लू नहीं चिपकेगा, राइट, ऐसे ग्लू नहीं चिपकेगा, राइट, ऐसे ग्लू नहीं चिपकेगा। अब इसकी क्या न्यूमोनिक्स है इसमें, ऐसे ग्लू नहीं चिपकेगा में देखो, ऐसे, राइट, ऐसे इज ए एस इज फॉर एस्पार्टेट, राइट, एंड देन ग्लू, जी एल यू इज फॉर ग्लूटामेट, राइट, नहीं फॉर नेगेटिव, एंड चिपकेगा चार्ज, राइट। सो नेगेटिवली चार्ज में क्या आ जाएगा, ऐसे ग्लू मीन्स एस्पार्टेट, ग्लू मीन्स ग्लूटामेट, राइट। तो ये थे इनकी ट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट हमारे जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम, नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप से स्टार्ट कर देते हैं। नॉन पोलर आर ग्रुप में सबसे पहले ग्लाइसिन देखो, ग्लाइसिन में आर ग्रुप हाइड्रोजन आएगा। एलेनिन में, अब देखो नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप का मतलब क्या है कि जो इनके जितने जो आर ग्रुप्स होंगे उन पे कोई चार्ज नहीं होगा, राइट, नो चार्ज, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ क्या मिथाइल ग्रुप्स ऐड हुए मिलेंगे, राइट। तो देखो, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, ओके। फिर इसके बाद ये CH3, इसमें एलेनिन, फिर प्रोलीन में देखो, प्रोलीन में मैंने बोला था कि एक साइक्लिक आर ग्रुप है इसका, तो यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है, राइट। जो ये नॉर्मली जो बेसिक जो स्ट्रक्चर था इसको, जो अमीनो ग्रुप था वो भी चेन में चला गया, वो भी आर ग्रुप वाली चेन के साथ बॉन्ड बना लेता है, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, राइट। और ये एलिफेटिक आर ग्रुप होता है इसका, ये भी आपको याद रखना है, और नॉन पोलर होता है। वेलाइन, सॉरी वेलिन, वेलिन में क्या होगा, वेलिन में ये होगा CH3 CH3, राइट।
एलेनिन के नीचे अगर हम 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें तो वो वेलिन बन जाएगा, राइट। फिर ल्यूसीन, ल्यूसीन में क्या होगा, यहाँ पे एक और सी एच ऐड कर दो, ये ल्यूसीन बन जाएगा, राइट। देखो ये ल्यूसीन है। आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन में क्या होगा, ये वाला CH3 यहाँ से उठा के यहाँ ऐड कर दो, आइसोमर है ना, ल्यूसीन का आइसोमर इज आइसोल्यूसीन। आइसोमर कैसे होगा, ये जो नीचे वाला CH3 इसको ऊपर लगा दो, राइट, ये आइसोल्यूशन बन जाएगा। फिर मिथायोनिन, मिथायोनिन में देखो, अब मिथायोनिन में ऐसा जाता है, राइट। इसका स्ट्रक्चर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, और मैनी ए टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन से हैं, उनके स्ट्रक्चर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करो, ये जो स्ट्रेट चेन थी आइसोल्यूसिन वाली, यहाँ पे क्या करो, एस लगा दो, राइट। यहाँ पे इन्होंने एस लगा दिया है और ये क्या बन गया, मिथायोनिन, राइट। नेक्स्ट इज, दिस इज अबाउट नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज स्टडी कर लो जो आपके दिस लेनिंजर बुक में गिवन है, कि जो एलेनिन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, राइट, वो नॉन पोलर एलिफेटिक उनके आर ग्रुप होते हैं। अब जो नॉन पोलर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो कौन से टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाते हैं। तो राइट, जो इनमें जो इंटरेक्शन होगी तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगी, राइट। जब ये प्रोटीन में होंगे तो ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शंस बनाएंगे, नॉन हाइड्रो सॉरी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाएंगे, राइट, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाएंगे। जो ग्लाइसिन है वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल जो एमिनो एसिड है वो ग्लाइसिन है, राइट। Although it is most easily grouped with the non-polar amino acid, it is very small side chain, makes no real contribution to hydrophobic interaction. अब छोटा सा हाइड्रोजन लगा दिया है, उसका कोई इतना कुछ रोल तो होगा नहीं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में। मिथायोनिन में क्या है, वन ऑफ द टू सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, इसमें सल्फर है। टोटल 2 एमिनो एसिड्स ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर होता है, सिस्टीन है एक, तो एक मिथायोनिन है, राइट। मिथायोनिन हमने पढ़ लिया इसका स्ट्रक्चर, राइट, एंड इट हैज नॉन पोलर थायोईथर ग्रुप इन साइड चेन। प्रोलीन में क्या है, प्रोलीन में क्या है, इट हैज डिस्टिंक्टिव साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के लिए जो वो एमिनो ग्रुप था वो भी साइकिल में चला जाता है और वो सेकेंडरी एमिनो बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इमीनो, राइट, उसको बोलते हैं हम इमीनो। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इमीनो किसके स्ट्रक्चर में होता है तो यू हैव टू आंसर कि प्रोलीन के स्ट्रक्चर में इमीनो होता है, राइट। तो जो ये जो इम्यूनो है ये क्या प्रोवाइड कर देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर देता है प्रोलीन को। अब जहां भी जो जिस भी प्रोटीन में प्रोलीन आएगा, जिस भी स्ट्रक्चर में प्रोलीन आएगा उसमें वो क्या कर देगा, रिजिडिटी प्रोवाइड कर देगा, मतलब उसको स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल नहीं रखेगा, बैंड नहीं होने देगा इजिली, राइट। तो ये स्ट्रक्चर को रिजिड बना देगा क्योंकि इसकी जो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है वो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, राइट। So this is about proline or and for all aliphatic non-polar amino acids, right. नेक्स्ट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जिनमें इसका जो आर ग्रुप है वो एरोमेटिक होता है। कौन से पढ़े थे, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, राइट। अब फिनाइल एलेनिन में क्या होगा, ये एक बेंजीन रिंग लगा देंगे, राइट, ये फिनाइल एलेनिन बन गया, CH2 लगा के ये बेंजीन रिंग, राइट। टायरोसिन, टायरोसिन में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे इधर, राइट। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, राइट, ओके। ट्रिप्टोफैन में ये एक साइक्लिक रिंग है और एक ये एरोमेटिक रिंग है, ओके, राइट। अब एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक में गिवन है वो ये है कि फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन ये सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं विद एरोमेटिक साइड चेन एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये भी जैसे कि एलिफेटिक थे वो भी हाइड्रोफोबिक थे और ये भी हाइड्रोफोबिक होते हैं। ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन सम एंजाइम। अब हमने पढ़ा था कि जो टायर, देखो ये वाला डायग्राम, टायरोसिन जो है उसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, और जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो चेन मेन जो साइट होती है, राइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जो मेन एक्टिव साइट होती है, राइट, एक्टिव साइट जिसको हम बोलते हैं, उस एक्टिव साइट में मेनली टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं, मेनली टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं। क्यों टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप होता है और OH ग्रुप इज वेरी रिएक्टिव ग्रुप, ये इजिली रिएक्ट कर लेता है सबस्ट्रेट के साथ, राइट। तो यहाँ पे दिस एक्टिव ये OH की जो प्रेजेंस है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर
एंजाइम एक्शन, राइट, एंजाइम की एक्टिव साइट में ये मिलेंगे। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन फिनाइल एलेनिन। अब अगर आपसे एरोमेटिक में ऑर्डर पूछा जाए कि इनमें से कौन से ज्यादा पोलर हैं, राइट, इसमें से कौन से ज्यादा पोलर हैं, तो व्हाट यू हैव टू आंसर कि टायरोसिन, राइट, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन ज्यादा पोलर हैं फिनाइल एलेनिन से। ओके, देन एंड द नाइट्रोजन ऑफ द ट्रिप्टोफैन इंडोल रिंग, क्यों? क्योंकि टायरोसिन में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, राइट, इसकी वजह से ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। अब ये ज्यादा पोलर हैं, तो जो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन है वो ज्यादा यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फिनाइल एलेनिन के कंपैरिजन में, राइट। अब अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इनमें से भी ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन में से कौन ज्यादा यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है, कौन ज्यादा पोलर है, राइट, तो आप आंसर करोगे ट्रिप्टोफैन, राइट। ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर देख लो, ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट, ये ज्यादा, इसमें नाइट्रोजन है एक, ये वाला कंपोनेंट है। और जो टायरोसिन है उसमें ऑक्सीजन है, राइट, ये कम यूवी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रिप्टोफैन ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो फिनाइल एलेनिन था ये तो बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, राइट, बिल्कुल लेस, राइट। सो दिस इज एब्जॉर्बेंस, राइट, हियर वी हैव वेवलेंथ, राइट। सो ये एब्जॉर्बेंस कर्व है इन केस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, राइट। नाउ सी दिस अकाउंट्स, अब जो ये वाला जो ग्राफ है दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ नो मैटर व्हाट, राइट। एंड दिस अकाउंट्स फॉर, जो ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इसकी वजह से ही। और ये मेनली अब आपको ये देखना है कि ये कौन सी वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करते हैं, 280 नैनोमीटर पे ये एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी पीक देखनी है मेनली हमने कि इनकी पीक कौन सी वेवलेंथ पे आती है, तो दोनों की पीक एब्जॉर्बेंस किस पे मैक्सिमम होती है, 280 नैनोमीटर पे। तो जो प्रोटीन का जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेंस आता है वो 280 नैनोमीटर पे आता है। इसलिए जो जब हम लैब में टेस्ट करते हैं, हम प्रोटीन एस्टिमेशन करते हैं, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो वहां पे जब हम ये चेक करते हैं, राइट, जितनी भी हमें रीडिंग्स लेनी होती है तो वो 280 नैनोमीटर पे हम एब्जॉर्बेंस रीडिंग लेते हैं, क्योंकि 280 नैनोमीटर पे ही प्रोटीन की पीक आती है, राइट। तो दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लोरेटेड बाय रिसर्चर्स इन द करेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो जब भी हमें प्रोटीन का करेक्टराइजेशन करना होता है कि हमें प्रोटीन है या नहीं, तो हम उसकी एब्जॉर्बेंस ले लेते हैं 280 नैनोमीटर पे। अगर प्रोटीन होगा तो पीक आएंगी 280 नैनोमीटर पे, नहीं तो नहीं, राइट। नेक्स्ट, पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप में क्या होगा अब, और ये प्रॉपर्टी थी किसकी, एरोमेटिक की, राइट, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की। नेक्स्ट इज पोलर अनचार्ज ग्रुप, ये पोलर होंगे, ये पोलर होंगे, लेकिन क्या होगा, ये अनचार्ज होंगे, राइट, इन पे चार्ज कुछ नहीं होगा। तो सीरीन, राइट, सीरीन पोलर है क्योंकि इसमें OH ग्रुप आ गया। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन में भी OH ग्रुप आ गया तो ये पोलर है। सिस्टीन, सिस्टीन में SH ग्रुप आ गया तो ये पोलर है, राइट। सिस्टीन का स्ट्रक्चर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। एस्पार्जिन, एस्पार्जिन में O आ गया, राइट, ये कीटोनिक ग्रुप आ गया। देन ग्लूटामिन में भी दिस ग्रुप, राइट, तो इसकी वजह से ये पोलर हैं। अब देखो पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप ऑफ दीज एमिनो एसिड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि इनके जो ग्रुप हैं वो पोलर हैं तो ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होंगे, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है। एंड लाइक डिजोल, लाइक पोलर पोलर में डिजोल होगा, नॉन पोलर में डिजोल होगा, राइट। तो दीज आर हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, राइट। और इसमें कौन से, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, राइट। जो OH ग्रुप होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करते हैं। सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन इसके एग्जांपल्स हैं, और ये सब तो हमने पढ़ लिया, राइट। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स, राइट। पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स में क्या होता है कि इनकी साइड चेन में पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप मिलेंगे, राइट। जैसे कि लाइसिन में एक एमिनो ग्रुप होता है आर चेन में, साइड चेन में आर ग्रुप में। आर्जिनिन में सेकेंडरी दिस सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, राइट, इमीनो जिसको बोलते हैं। हिस्टिडिन, हिस्टिडिन किस में होता है, सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हिस्टिडिन में क्या होगा, हिस्टिडिन में ये ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है अगेन, राइट। नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप में साइड चेन में नेगेटिव चार्ज होगा, राइट, ये आर नेगेटिवली चार्ज होगा। एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट इसके एग्जांपल्स हैं, राइट। एस्पार्टेट में भी आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ग्लूटामेट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आर ग्रुप में, राइट।
अब देखो, अब सेलिनोसिस्टीन, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, एब्रीवेशन, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब सेलिनोसिस्टीन देखो, सेलिनोसिस्टीन जो है वो एक स्पेशल केस है, राइट। ये 21st अमीनो एसिड है, राइट, एंड दिस इज द रेयर अमीनो एसिड रेजिड्यू। ये बहुत रेयर है और प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है प्रोटीन चेन में, राइट, rather than created through a post synthetic modification, right. इट कंटेन्स, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सिलेनोसिस्टीन है वो प्रोटीन में उसको कैसे इंट्रोड्यूस करा जाता है, तो आपको ऑप्शन देंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से करा जाता है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन से करा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन बन रहा होता है राइबोसोम पे, उसी टाइम, ट्रांसलेशन के टाइम ही इसको ऐड कर दिया जाता है प्रोटीन चेन में, राइट। तो सेलिनोसिस्टीन को इसलिए हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं कि 21st स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, राइट। अब यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, एक स्पेशल पॉइंट है इसके बारे में, यूनिक पॉइंट है इसके बारे में। देखो, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है तो वो टीआरएनए उनको लेके आएगा, प्रोटीन चेन में लगा देगा, राइट, प्रोटीन चेन में अटैच करवा देगा। बट हियर वी हैव अ डिफरेंट केस, राइट। इसको टीआरएनए अटैच नहीं करवाता, इसको टीआरएनए नहीं लेके आता सेल से। ये क्या होता है, ये डायरेक्ट राइबोसोम से ही ये प्रोटीन जो है राइबोसोम से ही डायरेक्ट, सॉरी, ये जो अमीनो एसिड है ये राइबोसोम से ही डायरेक्ट प्रोटीन में अटैच होगा, राइट। ओके, इट कंटेन सेलेनियम। और दूसरी बात, सेलिनोसिस्टीन क्यों बोलते हैं हम इसको, ये सिस्टीन ही है, इसका स्ट्रक्चर सिस्टीन ही है। लेकिन नॉर्मली सिस्टीन में क्या देखते हैं हम, सल्फर होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे सल्फर की जगह सेलेनियम होता है, राइट। सेलेनियम कंपाउंड, सेलेनियम यहाँ पे सल्फर की जगह मिलेगा, राइट। तो सेलेनियम इज प्रेजेंट रेदर देन द सल्फर ऑफ सिस्टीन, एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम सीरीन, राइट। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसका जो डेरिवेशन है वो कहाँ से हुआ है, कौन से अमीनो एसिड से होता है, तो ये आप सिस्टीन नहीं बोलोगे, यहाँ पे सीरीन बोलोगे, राइट। सिस्टीन में एस होता है, सल्फर होता है, सिलिनोसिस्टीन में सेलेनियम होता है, और ये डिराइव किससे होता है, सीरीन अमीनो एसिड से होता है। तो सेलिनोसिस्टीन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जस्ट अ फ्यू नॉन प्रोटीन, कुछ ही प्रोटीन्स में सेलिनोसिस्टीन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अबाउट 300 एडिशनल अमीनो एसिड हैव बीन फाउंड इन सेल्स, जो कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स नहीं है, उनके कुछ अदर फंक्शंस होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन आवर सेल्स, राइट। 300 एडिशनल अमीनो एसिड्स, और उनका फंक्शन, कुछ अलग फंक्शंस होते हैं, राइट। जैसे कि कुछ का फंक्शंस अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस में होता है, सॉरी, मेटाबॉलिक पाथवेज में होता है, राइट, लाइक ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, राइट, इनके फंक्शंस मेटाबॉलिक पाथवेज में होते हैं, right, so they deserve special note because they are the key intermediate metabolite in biosynthesis of arginine। ऑर्निथिन और जो सिट्रुलिन है वो यूरिया साइकिल में और आर्जिनिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऑर्निथिन और सिट्रुलिन आपको याद रखने हैं। ऑर्निथिन और सिट्रुलिन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स नहीं है, राइट, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, बट ये अदर जो हमारी बॉडी में यूरिया साइकिल होता है, देन दिस जो यूरिया साइकिल होता है एंड दिस आर्जिनिन वाली जो साइकिल होती है, आर्जिनिन की जो बायोसिंथेसिस होती है, उसमें ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ओके, अब सेलिनोसिस्टीन की कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेलिनोसिस्टीन पे जो इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, कि जो सेलिनोसिस्टीन है उसका कोडोन क्या है। देखो, अब हर एक अमीनो एसिड का एक कोडोन होता है, राइट, आप जो ट्रांसलेशन में पढ़ते हो। तो सेलिनोसिस्टीन का क्या कोड है, इसका कोड है यूजीए कोडोन। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो ये PYQ है, राइट। इसको ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, CSIR UGC नेट में। तो कोडोन क्या है सेलिनोसिस्टीन का, डायरेक्ट यही पूछा गया था, और गेट में भी ये पूछा गया है पहले। तो सेलिनोसिस्टीन का जो कोड है दैट इज यूजीए कोडोन, राइट। एंड यूजीए, अब आप बोलोगे कि यूजीए तो स्टॉप कोडोन होता है, ये सेलिनोसिस्टीन का कोडोन कैसे हो सकता है। सी, टिपिकली तो ये स्टॉप कोडोन होता है mRNA के अंदर जब आ जाए, लेकिन जब ये यूजीए सेलिनोसिस्टीन के लिए कब कोड करेगा, हाउएवर इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट व्हेन प्रीसीडेड बाय सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस, और ऐसी कुछ इंसर्शनल सीक्वेंस होते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉप कोडोन जो है ये सेलिनोसिस्टीन को एनकोड कर देता है, राइट। और इसकी जो सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम पे होती है, ट्रांसलेशन के टाइम पे ही होती है। ये अमीनो एसिड्स, जैसे अदर अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको तो टीआरएनए लेके आता है, उनकी सिंथेसिस अलग होती है,
राइट लेकिन इस केस में क्या होता है, सिंथेसिस क्या होती है, राइबोसोम पे होती है, ट्रांसलेशन के टाइम ही होती है. तो दिस इज अबाउट सेलिनोसिस्टीन. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर ऑन अमीनो एसिड्स. राइट, अमीनो एसिड्स की पोलर, नॉन पोलर, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, देयर एब्रीविएशन, देयर हिस्ट्री, राइट, देयर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये हमने डिस्कस करी. राइट, अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बची है ज्विटर आयनिक और इसकी टाइट्रेशन कर्व. राइट, एमिनो एसिड्स की ज्विटर आयनिक फॉर्म एंड देयर टाइट्रेशन कर्व, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, जो हम ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते इस लेक्चर में. विल डिस्कस इन अनदर वीडियो अबाउट टाइट्रेशन कर्व ऑफ एमिनो एसिड. ये बेसिक वीडियो थी कि आपको बेसिक अमीनो एसिड्स याद हो जाएं, उनके एब्रीविएशंस याद हो जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज याद हो जाएं. राइट, नेक्स्ट जो बिल्कुल जो कंसेप्चुअल पार्ट है, राइट, जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, चार्ज कैलकुलेशन करना अमीनो एसिड्स पे, देयर टाइट्रेशन कर्व, पीएच का क्या इफेक्ट आएगा उन पे, ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन अ डिफरेंट वीडियो लेक्चर. राइट, एक न्यू वीडियो लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे. दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप you have understood each and every amino acid structure and their properties. Thank you. All the best.